Today we are going to discuss population density in the world. What is its definition? What are its types? And what are the pattern of population density across the world? So let's start. Population density. It is a ratio between land and population. A simple ratio between land and how many people living on this land. In other words, how many people living on per kilometer square area of the particular land. So in 1 square kilometer area, how many people living there? It is called population density. यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जगह में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और ये क्या है? साधारण अनुपात है जनसंख्या और क्षेत्र के बीच। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है या कम है और संसाधनों पर कितना दबाव पड़ रहा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। There are 4 types of density. First one is arithmetic density, गणितीय घनत्व. It is a simple ratio between total land and total population. We know that the population of India in 2011 121 crores and area is 32.7 lakh kilometer per square. So a simple division will get us to 382 person per kilometer square. This is the actual density, arithmetic density of India. The physiological density या कायिक घनत्व, it is different from arithmetic density. In physiological density, we have total population and total agricultural land. So physiological density gives us a clear idea of a country. If a country is agricultural like India and all the other countries of African continents, because it gives the how much pressure on agricultural land in particular country, especially in physiological density. So this should be measured more in developing countries to develop that country and for making policies, etc. So after that, our third one is agricultural density. Its formula: total population engaged in agriculture upon net agricultural area. This is give a complete view of agricultural density, that how much population belong to or engaged in agricultural activity and what are the total agricultural area that is shown, यानी कुल जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई कितनी है
और कुल कितनी जगह पर कृषि की जा रही है या जो जगह बोई गई है फसल उत्पादन के लिए। तो यह भी एक सार्थक गंतव्य है, कृषि गंतव्य कहा जाता है। कृषिगत देशों के अंदर यह भी अति आवश्यक होता है। इकोनॉमिक डेंसिटी, आर्थिक गंतव्य, ये उन देशों में निकाला जाता है जो देश ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों पर आधारित होते हैं और जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं तीसरे या चौथे प्रकार की होती हैं, यानी कृषि जहाँ पर इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के अंदर ही इकोनॉमिक डेंसिटी को निकाला जाता है और वहीं ये ज़्यादा सार्थक होती है। तो अब हम इसके पैटर्न्स देखते हैं। When we looking at the pattern of population density of world, we are surprised to see that the density of world around 2007 is 49% per kilometer square, but Asia is the largest, 126, Europe 32, Africa 31, South America 21, North America 15 and Oceania only 4% per kilometer square. So lot of differences, बहुत सारी विषमताएं देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी खड़े हो रहे हैं, जैसे why Asia is most dense continent in the world, what are the reasons behind it। तो ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि एशिया के अंदर ज़्यादातर भाग है वो मैदानी भाग है। मैदानी भाग कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं और एशिया के अंदर बरसात भी अच्छी होती है, मानसून से कई देश प्रभावित होते हैं, उनसे अच्छी वर्षा होती है। और जो एशिया के अंदर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, उन्होंने बड़े बड़े जो जलोढ़ के मैदान बनाए हैं, उनके अंदर भी कृषि अधिक की जाती है, सफल कृषि की जाती है, वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। ये सब जनसंख्या को उत्साहित करते हैं वहाँ कंसंट्रेट होने के लिए। इसके अतिरिक्त और भी कई आर्थिक कारण होते हैं, जैसे विशाल मात्रा के अंदर नगरीकरण होना, औद्योगिकरण होना। तो ये सब फैक्टर मिलकर एशिया को मोस्ट डेंस पॉपुलेशन बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ओनली 31 है, जो कि वहाँ पर जो विकास का स्तर है वो इतना अधिक नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब भी ये महाद्वीप विकसित होगा तो इसकी जो जनसंख्या घनता है वो और अधिक बढ़ जाएगा। वहीं यूरोप ने अच्छी नीतियाँ अपनाई हैं, हालांकि यूरोप के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के सभी कारण, जो प्राकृतिक कारण हैं, वे मौजूद हैं। अच्छी जलवायु है वहाँ पर, इसके अतिरिक्त विशाल मात्रा के अंदर वहाँ विकास भी हुआ है। तो सब कुछ परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समझबूझ और जो सुविचारिक नीतियाँ हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने वहाँ पर जनसंख्या को इतना अधिक बढ़ने नहीं दिया है। हालांकि सबसे पहले जो औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यूरोप के अंदर ही हुआ था। वहीं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कम जनसंख्या घनत्व मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे कम मात्र 4 ही जनसंख्या घनत्व मिलता है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के पैटर्न हैं। फिर इनके अंदर आगे देशों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी एशिया के अंदर भी कई देश ऐसे होंगे जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और कईयों का बहुत कम। ऐसे ही इन महाद्वीपों के अंदर भी, तो उनकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की यदि विभिन्न देशों के अंदर बात करें कॉन्टिनेंट्स के, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर मकाओ के अंदर सबसे अधिक 21,900 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। उसके बाद सिंगापुर भी एक अत्यधिक सघन आबादी वाला देश है। लोवेस्ट की बात करें तो मंगोलिया के अंदर मात्र 1% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा। तो इतनी अधिक विविधताएं आपको मिलेंगी। मंगोलिया एक ठंडे मरुस्थल का देश है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पनप नहीं पाई है। अफ्रीका के अंदर मॉरिशस जो कि एक द्वीप है, वहाँ पर 618 पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, जबकि पश्चिमी सहारा में एक व्यक्ति
इसके बाद नामीबिया के अंदर 2, जो कि कम बसे हुए इलाके हैं। यूरोप के अंदर नीदरलैंड के अंदर 394 जनघनत्व मिलता है, सर्वाधिक है। आइसलैंड के अंदर मात्र 3। साउथ अमेरिका के अंदर कोलंबिया 41 और अर्जेंटीना 14। नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्यूर्टोरिको 445 और कनाडा में मात्र 3। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर फिजी द्वीप पर 47, यानी काफ़ी जनघनत्व है, क्योंकि औसत जनघनत्व यहाँ पर 4 ही है। तो फिजी के अंदर 47, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर मात्र 3 जनसंख्या घनत्व ही आपको मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। तो इस कारण से यहाँ का जनघनत्व काफ़ी कम है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने विश्व में जनसंख्या घनत्व का डेफिनेशन देखा था कि एक साधारण अनुपात है जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच, और उसका सूत्र क्या है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, 4 टाइप के थे, और उनकी गणना किस प्रकार होती है ये भी देखा था। और पैटर्न के अंदर हमने अलग अलग महाद्वीपों में और अलग अलग देशों के अंदर क्या स्थिति है इसका वर्णन किया है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।